Morning, everyone. So Morning, sir. let's start today's lecture. Let me see who are there in the waiting room. Yeah, let me take all in. Yes. So let me also share my screen. Yes. Okay, so yesterday what we were talking about is we were talking about the semiconductors. And in semiconductors, we were talking about the, just a minute, yes. So we were talking about the semiconductor. And we have seen that there are two types of semiconductor. One is intrinsic and the other one is extrinsic. Okay. And we were also talking about the intrinsic semiconductor. So what we have already seen in the last lecture is, just a minute, let me take all people who are there in the waiting room, admit all, and let me change the setting. Security. Just a minute. I have disabled the waiting room. Now anyone can join anytime, no problem. Okay. So yes. So in intrinsic semiconductor, what we were saying is that valence band and conduction band. So these bands basically represents energy. Sorry, my screen is visible or not? Sir, you're muted, sir. Sorry, my screen is visible or not? The screen is visible or not? Can anyone please reply? Sir, your voice is Your voice is lagging. sir. Sir, the screen is also not visible. Just a minute. Just a minute. I am connecting some other internet. So just give me 1 minute more. Yeah, now I think everything will be fine. Yes, sir. Yes, no problem. So I have admitted all, and let me change the setting also. So yes, disable the waiting room. So now anyone anytime can join. And now let me share the screen. Yes, now I think there will not be any problem. Okay. So what we were discussing about intrinsic as well as the extrinsic semiconductors. We were also talking about the valence band and the conduction band. They represents the energy levels, meaning if electron is in the valence band, what we call it that it's bound to the parent atom. It cannot move freely inside the crystal. So valence band का meaning ये हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे so that आपको थोड़ा easy रहेगा. Valence band meaning if this is a band, this is an energy band. This is an energy band where if the electrons are present in this band, they are moved to bound only with the parent atoms. They are not free to move in the crystal. They are not free to move. They are bound. But in conduction band, let's say if you have a conduction band,
So this band has energy level in such a way. So this band has a energy level in such a way that the electron can move freely in the complete, you can say crystal or you can say lattice. दोनों एक ही बात है कि lattice में या crystal में कहीं पर भी move कर सकता है. Okay, so these things we have already seen. Now, to move electron from valence band to conduction band, we require energy. That also we have seen. Let's say this is a conduction band. So let's say I'm writing it CB conduction band, and let's say I'm writing this as a VB valence band. So the band, the energy gap between the conduction band and the valence band is somewhere 1.1 electron volt in case of a silicon, and it's a 0.7 electron volt in germanium. Okay, no problem. So now what we have also discussed in the last lecture, that at 0 Kelvin, अगर हम 0 Kelvin की बात करें, so semiconductors are insulators. वो क्या होते हैं? They are basically insulators because there is no electron get enough energy to move from the valence band to the conduction band. And at this particular point of time, your valence band is completely filled. So at 0 Kelvin, what happens? The valence band is completely filled. However, the conduction band is completely empty. Okay, so if the conduction band is completely empty, there is no conduction electron. If there is no conduction electron, it cannot conduct. If it cannot conduct, there is no current. It's a zero current, meaning it's behaving as an insulator. Okay, no problem. Then what we have also discussed in the last lecture is, let's say I bought this semiconductor, this piece of a semiconductor at room temperature. So some of the electrons get enough energy to move from valence band to the conduction band. है ना, जैसे हमने बच्चे का एग्जांपल लिया था, उसने अगर कोई चीज़ी खाई, दूध पिया, खाना खाया, कुछ भी, and then he has or she has the enough energy to move to go to the ground, कि मैं ground पर जा रहा हूँ, है ना, मुझे खेलने जाना है. Similarly, if the valence band electron gets enough energy, now this energy can be of either form, like it can be in the form of light, it can be in the form of heat, it can be in the form of voltage, कोई से भी form की energy हो सकती है. Okay. Now at room temperature, since the silicon has higher band gap as compared to the germanium, so since Eg of silicon is greater than Eg of germanium, so that is why, so the number of electrons, meaning, let's say, let me write the concentration N in case of a silicon will be less compared to the number of electron in case of a germanium. Obvious है, क्योंकि the silicon has a higher band gap, so there will be less probability कि इलेक्ट्रॉन वहां से वहां तक जा पाए. अगर ग्राउंड दूर है तो पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं, यहीं खेलना है, घर में कहीं कोई बनाओ, एक सेपरेट रूम बनाओ, वहीं खेलो, बहुत दूर ग्राउंड है, you cannot go there. Okay, so if the conduction band is very far away from the valence band on the energy scale, so the electron cannot jump. They require higher energy as compared to the other materials. But in case of a germanium, they can easily jump and can go to the conduction band. So the number of concentration, the number of electron in case of a silicon is somewhere around 10 to the power 10 per centimeter cube. However, in case of a germanium, this is something around, I don't know what exactly the number is, 10 to the power 13 per centimeter cube. Because the order is important, this number is not important. 4 into 10 to the 13 or 4.5 into 10 to the 13 does not make any difference. Number is not important, the order is important. Okay, now here we stopped in the last lecture. Now the very, very important concept, why we not use the intrinsic semiconductor, है ना, ये मैं इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा था कि why we mostly use extrinsic, why we mostly use impure. Okay, so okay,
what is the conductivity? How the conductivity is defined? Sigma equals to Ne mu. This is the conductivity. कि कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की मतलब वो कितना फास्ट कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर कितनी कंडक्टिविटी हो सकती है, how easily it can conduct, it is defined by conductivity. So now it depends upon three things. Number one, how much is the charge available? जितना ज्यादा चार्ज अवेलेबल उतना ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी. नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन? एक चार्ज कितना फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन चार्ज, सो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज. And the mobility also, how easily they can move inside the crystal. वो move कैसे कर सकते हैं क्रिस्टल के अंदर, है ना? कैसे? मान लो एटम्स हैं, एटम्स रेगुलरली अरेंज नहीं है. लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और अगर वो रेगुलरली अरेंज है, इट कैन मूव वेरी फास्ट. बट इफ लेट्स से द वन एटम इज देयर, how the electron will move? The electron will move and it will find out some repulsion force here, because ये एटम है, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने पेरेंट्स इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, जो अंदर वाली इनर शेल के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन, there are 8 electron in the inner shells. So from these electrons, this electron will face the repulsive force. So ये इसका एकदम से पाथ चेंज हो जाएगा. जैसे ही पाथ चेंज होगा, here you will be finding one more atoms here. So ये इसकी तरफ टुवर्ड्स जा रहा होगा, फिर पाथ चेंज हो जाएगा. So it cannot move easily inside the crystal. Okay, so depending upon different material, how the atoms are arranged, whether they are arranged periodically, whether they are not arranged periodically, whether they are arranged amorphously, meaning the irregular arrangement of the atoms. Amorphous meaning irregular arrangement of the atoms. So how the atoms are arranged, what is the atomic density, all these things will change the mobility of the इलेक्ट्रॉन. सो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी. नाउ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखेंगे, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ऐसे करना है कि बस. सर जी सर, why do repulsive forces change the path of the electron? अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके पास जाएगा तो कैसे जाएगा? कुलाम फोर्स पढ़ा होगा ना आपने 12th में. कुलाम फोर्स कुछ ऐसा नहीं होता था 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, ऐसा नहीं होता था कुछ, ऐसा कुछ होता, R square होता था, R होता था, कुछ होता नहीं था कुलाम फोर्स. तो क्या होगा कि जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे एटम्स रखे हुए हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब इसको दोनों तरफ से बराबर जो है फोर्स लग रहा है. आप मुझे बताइए, आप कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म पे मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटे नहीं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ. जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक तो आपको नहीं कहते पीछे हट जाओ. जैसे ट्रेन आती है तो आपको कहते हैं कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ. क्यों कहते हैं? क्योंकि द चांसेस आर वेरी हाई कि आप ट्रेन की तरफ गिर ना जाएं. क्यों? क्योंकि व्हेन द ट्रेन विल कम, वहां से जो ये प्रेशर है, ये सारा का सारा प्रेशर ट्रेन उड़ा के ले जाएगी अपने साथ, है ना? लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीछे से तो लग रहा है, पीछे से तो वो फोर्स आपको लग रहा है, लेकिन सामने से वो फोर्स खत्म हो गया. जैसे ही वो सामने से फोर्स खत्म हो गया, तो चांसेस आर वेरी हाई और पाथ विल डिफ्लेक्ट. जिस पाथ पर आप जैसे खड़े वैसे खड़े नहीं रह पाएंगे. इजंट इट? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर. सो ऐसे ही है, ऐसे ही एटम्स है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. अब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक यहाँ से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक यहाँ से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये स्मूथली जा रहा है, यहाँ पे भी उसको उतना ही फोर्स लग रहा है, जा रहा है. लेकिन लेट से किसी एक पॉइंट पे इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर का एटम तो है बट इधर का एटम नहीं है. सो एक तरफ से उसका फोर्स गड़बड़ा गया, सो वो दूसरी तरफ, जिस तरफ एटम नहीं है, उसको दूसरी साइड में वो जाने को रेडी हो जाएगा, इमीडिएटली गिरेगा. सो फोर्स क्या होगा? फोर्स इम्बैलेंस हो जाएगा. अगर आप सामने उसके एक एटम आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, सो क्या होगा? फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसका पाथ जो इतनी तेजी से उसके अंदर तो मर्ज कर नहीं सकता, बिकॉज ऑलवेज देयर विल बी अ फोर्स. तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो उसको जाने नहीं देगा, और रिपल्सिव फोर्स इतना बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आर घटता चला जाएगा, फोर्स बढ़ता चला जाएगा. जितना वो उसके पास आता जाएगा, उतनी बुरी तरीके से वो उसको फोर्स से उसको कहेगा नो, चेंज योर ट्रेजेक्टरी. आपको ट्रेजेक्टरी चेंज करनी ही पड़ेगी. आप सेम ट्रेजेक्टरी में आ ही नहीं सकते जब सामने से आपको फोर्स कोई धकेल रहा है. तो बताओ कैसे आओगे? इतनी तेजी से सामने से आपको हवा धकेल रही है, आप कैसे आप उसकी तरफ, उसके डायरेक्शन में मूव करोगे? देखा आपने, जब आपने ये सारे क्वेश्चंस करे होंगे 12th में, आप भूल गए कि जैसे अगर मान लो किसी ने, एक बोटमैन ने अगर एक रिवर को क्रॉस करना है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लिया जाए इधर जो है फ्लो है, तो वो यहाँ नहीं, वो यहाँ आके रुकता है. Yes sir, drift. ड्रिफ्ट है ना?
सो ये बेटे बहुत छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है, ये तो हमेशा, ये इसीलिए 12th जो होता है वो बेसिक कहलाता है कि हमें 12th की सारी चीजें याद रखें और आगे कुछ है नहीं। कहीं आप सोचते हो कि नहीं पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, ये सारे फंडे जो बुक्स बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर हैं ये है छोटी क्लासों की। ये छोटी छोटी क्लासों में जो हम चीजें समझ लेते हैं वही चीजें बस थोड़ा सा उसको और डीप में पढ़ते 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 हम डिटेल में जाते हैं। ओके, सो नाउ द कंडक्टिविटी इज Ne mu। Now, very important concept I wanted to bring here. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये इंटरव्यू में बहुत से लोग पूछते हैं कि why intrinsic semiconductor is not useful. So now sigma is proportional to n. If the number of electron will increase in a semiconductor, the conductivity will change. Okay, ये एक कंसेप्ट हमें पता चल गया। इससे अब हम देखते हैं कि why the semiconductor, why the intrinsic semiconductor is not useful at all. Okay, so now let's say at room temperature you have certain number of electrons which are there in the conduction bands. Let's say in silicon, अभी मैंने लिखा, let's say there are 1.5 into 10 to the power 10 number of electrons per centimeter cube. Okay, no problem. Now let's say let's find out the conductivity of this material. Let's say Ne mu. N is 1.5 into 10 to the power 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into mu. Mu is let's say for electron it's 1350. मुझे पता है, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें, इतना कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये वैसे भी गिवन होगा आपको न्यूमेरिकल में। जब भी मुझे वैसे याद है कि सिग्मा जो होती है वो 1350 होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो 1350 होती है, हॉल की जो मोबिलिटी होती है दैट इज 450 इन केस ऑफ ए सिलिकॉन। हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, सिलिकॉन में ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ली। अब आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, you wanted to make some let's say toy, let's say you wanted to make IC, आप एक IC बनाना चाहते हैं। ओके, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलिए, आप बनाना चाहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक ऐसा सर्किट, इंटीग्रेशन मीनिंग आपने 12th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन मीनिंग समेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। आप समेशन करते हो इंटीग्रेशन में बेसिकली। सो जब समेशन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट मीनिंग अ सर्किट व्हिच हैज एवरीथिंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। उसको अपन आईसी कहते हैं। ये नहीं कि कैपेसिटर अलग, बैटरी अलग, ये अलग, वो अलग, सब चीजें अलग अलग नहीं। इट्स नॉट डिस्क्रीट, इट्स ए इंटीग्रेटेड सर्किट, एवरीथिंग इज ऑन ए सेम चिप। ओके, लेट्स से यू वांटेड टू मेक दैट। ओके, यू हैव फाइंड आउट कि ओके आपको एक मटेरियल चाहिए, इसके लिए आपने बहुत सारे पैरामीटर स्टडी करके फाइंड आउट कर लिया कि ओके आई वांट दिस मच ऑफ कंडक्टिविटी, मुझे एक कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उस मटेरियल की एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी चाहिए थी क्योंकि आपको थोड़ा सा वो फास्ट चाहिए था मटेरियल कि वो अच्छे से काम करे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो यू हैव डिसाइडेड टू गो विद द सिलिकॉन कि ओके आई विल गो विद द सिलिकॉन, मेरी तो कंडक्टिविटी इस सिलिकॉन के साथ मैच हो रही है। And let's say you made that integrated circuit. आपने किसी कंपनी को ऑर्डर दिया, okay, just fabricate my integrated circuit. This is the material. Made that. 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 rupees you have paid. Okay, no problem. Now, let's say this you have done everything you have done in the winter session. जब इंडिया में टेम्परेचर लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस, कहीं नॉर्थ में लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर में या लेट्स से पंजाब में 5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, आपने ये तब सब कैलकुलेशंस कर ली, बना लिया, ऑर्डर दे दिया, 50,000 रुपए में खरीद लिया। एंड नाउ लेट्स से द सेम डिवाइस, द सेम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो इंटीग्रेटेड सर्किट को आपने कहीं लैपटॉप के अंदर लेट्स से लगाया हुआ है, जैसे आप लैपटॉप का मदरबोर्ड खोले तो देखेंगे उसके ऊपर दुनिया भर के आईसीज, देयर आर मेनी आईसीज हैव बीन प्लेस्ड ओवर द मदरबोर्ड ऑफ द लैपटॉप, है ना। लेट्स से उनमें से एक आईसीज ये भी आपकी थी जो आपने 5 डिग्री सेल्सियस पे आपने सारी कैलकुलेशन की थी, बना दी, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स से जो ये अपना मौसम है, ये वेदर है, ये चेंज होके विंटर टू आप समर में पहुंच गए, जुलाई का महीना आ गया, इन द मंथ ऑफ द जुलाई, एंड लेट्स से यू आर इन ए जयपुर और लेट्स से यू आर इन ए राजस्थान where the temperature is little bit higher than the other areas. Let's say the temperature is 45 degrees Celsius. Now, can you tell me what will be the effect of the temperature on the number of electron? Increase. Will increase because They at will room temperature, yes, because at room temperature, if the 10 to the power 10 electrons are reaching
in the conduction band they are jumping and leaving behind holes. अभी मैं holes का concept भी बताऊंगा, ध्यान रखना, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो. So what is the concept of hole? इसको हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि होल लोगों को ऐसा लगता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अरे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? अगर एब्सेंस है किसी चीज की तो एब्सेंस तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना. सो व्हाई दिस इंपॉर्टेंट? सो ये हम डिस्कशन करेंगे अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि ओके, व्हेनेवर द वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, इट्स लीविंग बिहाइंड वन होल. बस अभी आप मन में एक ऐसी बात मान के रख लो कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लेट्स से इट्स लीविंग बिहाइंड अ होल. सो जाहिर सी बात है, अगर 10 to the power 10 electrons will going there, so 10 to the power 10 holes are there in the valence band. इक्विवेलेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पीछे एक होल छोड़ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पीछे 10 होल छोड़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, so at 50 degrees Celsius or at 45 degrees Celsius, more number of electron can jump from valence band to the conduction band, and as the more number of electron will jump, so you have more number of electrons to take part into the conduction. That means your material's conductivity will get changed. अब आपने तो अभी अपना एप्लीकेशन बनाया था कि ठीक है यार, मुझे तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन का एक चीज चाहिए, और उस एप्लीकेशन का सारा वो चला ही गया सब. जब कंडक्टिविटी ही चेंज हो गई आपके मटेरियल की, आपने एक मटेरियल चूज किया था कि ओके ठीक है ये मटेरियल चूज कर लेते हैं, ये सही रहेगा, कंडक्टिविटी हो गई चेंज. कंडक्टिविटी अगर चेंज हो गई तो आपका सारा पर्पस ही बेकार हो गया, फेल हो गया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स that the conductivity of intrinsic semiconductor is not in your hand. The conductivity of semiconductor, intrinsic semiconductor, is in temperature's hand. And do you want any circuit which will not work according to you, and rather it will work according to the temperature? Do you need some this kind of a circuit? Have you ever? You don't want. अरे भाई, आप सब कुछ चाहते हैं कि मेरे हिसाब से काम हो, मैं डिक्टेटर हो जाऊं बस, है ना? डिक्टेटरशिप, मैं डिक्टेटर पर मैं चलाऊं तो ऑन हो, लैपटॉप अपने आप ना बैठे बैठे ऑन होने लग जाए, है ना? ऐसे थोड़ी चाहते हैं हम कि अपने आप ही बैठे बैठे ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है. वी डोंट वांट दैट. वी वांट जब हम ये 0 और 1 वाला बटन दबाएं, ये 0 और 1 वाला बटन देखा ना आपने, ये 0 और 1 वाला ऐसे बटन होता है, देखो 0 and 1. Yes. ये बाइनरी से बना है, इट्स फ्रॉम बाइनरी, 0 and 1. बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं ना, देखो. सो हर चीज को ऑब्जर्व करना सीखो, हर चीज को ऑब्जर्व कि यार ये ऐसा क्यों है ना? सो बहुत से लोगों ने हो सकता है ये फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया हो कि यस यार इसमें तो 0 और 1 होता है ना? सो you want a kind of a circuit on which you have your control. You don't want a circuit on which the temperature has a control. If the temperature will rise, the circuit will behave differently. If the temperature will go down, the circuit will behave differently. No, you don't want that. You want, whenever I want something, then the circuit should work accordingly. Whenever I want, the circuit should now work according to this. I'll do this, the circuit will change its applications. Okay, but I have changed it. I am the master. I have changed it. तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा अपने आप काम करना. That is why the intrinsic semiconductor is not important at all. That is why the intrinsic semiconductor is not important at all. You want your control, and that's why there is impurity induced in the intrinsic semiconductor. And very obvious one more reason is that the intrinsic semiconductor itself have very less conductivity, and it is not suited for many applications. उसकी conductivity अपने आप में बड़ी कम होती है. अगर आप यहाँ से find out करें, so it's around 10 to the power minus 9, और यहाँ से 10 to the power 3 आ गई, इसको मैं 1.3 into 10 to the 3 लिख सकता हूँ. So conductivity is something of the order of 10 to the power minus 6. This low conductivity we don't want. So this is the very obvious reason the people gives in the interview. Okay, sir, why don't intrinsic semiconductor is used? Sir, its conductivity is very low. Then the interviewer asks, no, tell me something different. No, sir, yahi pata hai. So this is very obvious. 10 to the minus 6, very, very less conductivity. Another thing is, even the conductivity is less, but it could be useful for many applications. But the problem is, this conductivity itself is not stable with respect to the temperature. This is the main reason. This is why the intrinsic semiconductor is not used at all. अब इसको ऐसे नहीं,
अब इसको देखो, मेरे पास भी कोई बुक नहीं है, आपके सामने बैठा हूं, कोई बुक नहीं है ना। सो इसको ऐसे नहीं करना कि सौम्य, यस प्लीज आप अनम्यूट करके बोले। सर एक्सटेंसिव कंडक्टर्स में टेम्परेचर मॉडरेट कैसे मतलब उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते होंगे उसमें ऐसे चेंजेस क्यों नहीं आते? बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ, अभी तो मैं वहां आया ही नहीं, अभी तो इंट्रिंसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन की है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया। आएगा, पक्का बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है सौम्य? यस सर। ओके, सो पता नहीं क्या बात चल रही थी अपनी। हाँ यस, सो इसको ऐसे पढ़ना है कि इसको बुक्स की जरूरत नहीं हो कोई भी, और ये तुमको इतने इतने डिटेल्ड में बुक्स में मिलेगा भी नहीं बेटे, जितनी मर्जी बुक्स आप पढ़ लो। दिस कम्स विद द, ये एक टीचर के एक्सपीरियंस से आता है, जब हम लैब में काम करते हैं यही फायदा होता है। और क्या फायदा होता है टीचर का? देयर आर सो मेनी लेक्चर्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आज की डेट में तो ऐसा है कि यूट्यूब पे भंडार है, व्हाटएवर यू पुट ऑन अ यूट्यूब यू विल गेट, जो तुम्हारे मन में आएगा वो यूट्यूब के ऊपर मिलेगा तुम, है ना। सो दिस इज द बेनिफिट टू अटेंडिंग द लेक्चर्स। लेक्चर अटेंड करने का मतलब ये होना चाहिए कि समथिंग यू विल गेट व्हिच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, बिलीव मी। एंड इट्स नॉट कि तुमने मेरा आज लेक्चर अटेंड कर लिया, अब कल को मान लो मुझे सेम लेक्चर देना है, सो अरे ये वाला तो कल किया ही था। एवरी टाइम यू विल अटेंड द लेक्चर, एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग डिफरेंट। इट्स नॉट कि सर अब तो आपने इतनी अच्छी चीज बता दी, आप भी इसे यूट्यूब पे डाल दो, बात खत्म हो गई। नो नो नो, whenever you will attend the lecture you will get the different things, because कोई चीज कहीं से कोई चीज देखी नहीं, कहीं ये रखी नहीं किताब, यहाँ पे कोई किताब रखी नहीं कि वही चीज वो कोई कंटेंट बनाया नहीं। जब कंटेंट नहीं बनाया सो द थिंग्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली, है ना। अब बात करते हैं, ओके ऐसा क्या हो गया भाई, टेम्परेचर तो वहां पे भी बढ़ेगा, एक्सट्रिंसिक में भी, इन एक्सट्रिंसिक आल्सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज, लाइक द सौम्य वाज आस्किंग कि सर एक्सट्रिंसिक में भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हाउ दैट नाउ कंट्रोल is coming in your hand. So ये एक important question बन जाता है। Most of the students, maybe some of the students already know कि ये why, but not all. So I need to tell to the all students. For me, every student is same, है ना? Okay, चलिए बात करते हैं। Okay, now what is extrinsic? Extrinsic semiconductor में आप क्या करते हैं? Extrinsic semiconductor में you put some impurity. Okay. Now the silicon has a fourth group element. This is a silicon. Carbon, germanium, silicon, carbon, silicon, germanium, tin and lead. Lead. This is the fourth group. Now the best impurity to doped in this semiconductor is either third group or the fifth group. लोगों ने क्या किया, या तो थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई या तो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई। क्यों? मिलाने को तो कोई सी भी मिला लो, बट यू हैव टू सी दैट इट शुड वर्क फॉर यू। आपके लिए कुछ काम तो करना चाहिए, उसने कुछ ऐसी इंप्योरिटी तो होनी चाहिए। सो पीपल हैव ट्राइड सो मेनी इंप्योरिटीज, बट द बेस्ट suited impurity in fourth group element is either you should dop it with the third group element or you should dop it with the fifth group element. ये बात निकल के आई। ओके चलो करते हैं। लेट्स से वी हैव डॉप्ड द सिलिकॉन विद द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट व्हिच इज ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यस है ना, गुड। लेट्स से हम इसमें से कोई मिलाते हैं, लेट्स से पीपल हैव मेड नाइट्रोजन, लेट्स से पीपल हैव मेड फास्फोरस, व्हाट हैपेंस? बिकॉज़ दिस इज a pentavalent, in this you have 5 valence electron as compared to silicon where you have a 4 valence electron. Now the very interesting phenomena happened. क्या? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बताना मुझे उसका आंसर जिसकी मैथ अच्छी है ना। ओके, सो जो सिलिकॉन की एटॉमिक डेंसिटी होती है वो होती है 10 to the power 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई एक क्यूब ले लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो अपना लूडो खेलने वाला स्ट्राइकर होता है, लगभग उतना बड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो उतना बड़ा वो ले लें क्यूब, तो उसके अंदर सिलिकॉन का अगर क्यूब ले लें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to the power 22 एटम्स रहते हैं पर सेंटीमीटर। सो लोगों ने क्या करा कि अगर लेट्स से if we take one atom out from that matrix and let's say we put 1 atom of phosphorus in that, how does it change the material structure? वो पीपल ने देखने की कोशिश करी। अच्छा बहुत सिंपल है, देख भी लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज लेट्स से बॉन्डेड विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स लाइक दिस।
Every silicon is bonded like this. ये ऐसे silicon होते हैं, ऐसे silicon होते हैं, ये silicon होते हैं. So let's say I'm taking the example of this silicon. This has a 4 valence electron, and this is also having a 4 valence electron. This is also having a 4 valence electron. This is also having a 4 valence electron. This is also having a 4 valence electron, and these electrons, this silicon also having the 4 electron. But I'm showing only this for 5 this silicon atoms. Okay. Now ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो स्टेबल ऑर्बिट होती है वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो स्टेबल कहलाती है. सो ये क्या करते हैं, the neighboring silicon atoms make the covalent bonding. Covalent meaning the sharing of electron. They share the electron कि ओके तू मेरे में भी घूम लेना, तू इसके में भी घूम लेना, दोनों की जगह पे तुम घूम लेना. ये अपना शेयरिंग का प्लॉट हो गया, ये अपना शेयरिंग का ग्राउंड हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम. They have made a covalent bonding like this. No problem. Now what the people have done, they replace this silicon atom. Somehow they have, taken out one silicon from the matrix and put one phosphorus there. So उन्होंने क्या किया, यहाँ पे let me take the another color pen. Let's say what they have done is they have taken a phosphorus here. Now the phosphorus has 5 electrons. So 4 make the covalent bonding with the 4 silicon atom, and the 5th one was alone. 5th one was alone. 5वां बेचारा अकेला था. Now this electron is very loosely bound with the phosphorus atom. ये सारा मैं अब आपको केमिस्ट्री का फंडे बता रहा हूँ. Since this is not bonded with any of the electron, so ये अकेला है ना. जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में आओगे आप, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आओगे, some will get bonding, है ना, some will get bonding. कोई ना कोई अकेला रह जाएगा, ठीक है. अब जो अकेला रह जाएगा वो आपको ऐसे ही घूमता नजर आएगा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें. सो he will be loosely bound to the room. फिर वो कहेगा कि ठीक है यार चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, आज वहां घूम के आ रहे हैं, वहां घूम के आ रहे हैं, वहां घूम के आ रहे हैं, इधर उधर इधर उधर. बाकी अपने अपने सब कामों में है जिनके जो बॉन्डिंग हो गई. नाउ ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है दिस इज लूजली बाउंड. अब अगर मैं आपसे पूछूं, पहले 2 क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपसे चाहिए. आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो सारे के सारे, आपसे मुझे आंसर चाहिए. नंबर 1, एक तो लोगों ने क्या करा कि ये जो इम्प्यूरिटी मिलाई, दिस इम्प्यूरिटी दे हैव एडेड 1 पार्ट पर मिलियन. व्हाट इज द मीनिंग कि in 1 million of silicon atom they have only replaced 1 silicon atom with the phosphorus. सिर्फ एक सिलिकॉन को रिप्लेस किया 1 मिलियन में से. सो कैन एनीवन टेल मी, मतलब 10 to the power 6 सिलिकॉन एटम में एक निकाला और उसकी जगह एक फास्फोरस डाला. सो कैन एनीवन टेल मी कि इफ द इम्प्यूरिटी इज 1 in 10 to the power 6, so how many atoms will need to be added in 10 to the power 22 atoms of silicon? अगर 10 to the power 6 में एक मिला रहे हैं तो 10 to the power 22. यार प्लीज मैथ अच्छी करो, प्लीज मैथ अच्छी करो. 10 raised So, to the power 16. 4 Very good, very good, Power very good. 16, The answer sir. is there. Yes, answer is there. मैथ अच्छी करो भाई. देखो ये गलत बात है तुम्हारी, मैंने पूछा और तुमने देखो बिल्कुल ही ऐसा कोई आंसर दे दिया जो मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं है. ऑलमोस्ट 4 वाली बात बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है बेटा. इतने तगड़े तुम सबके, मुझे पूरी उम्मीद है इस पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि 80 से ऊपर तो 100% मैथ में सबके होंगे ही. पूरी उम्मीद है मुझे 80 से ऊपर, है ना. और ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि भैया कि सर 10 to the power 6 में अगर एक तो 10 to the power 22 में ऑलमोस्ट 4. देखो ये गलत हो गया भाई काम, ठीक है. सो अगर 10 to the power 6 में 1, सो 10 to the power 22 में 10 to the power 16. अच्छा 16. अब मुझे ये मत कहना कि सर ये भी एक्सप्लेन कर दो, प्लीज ये खुद से एक्सप्लेन करना अपने घर पे, ठीक है ना. ओके, 10 to the power 16. नाउ द अनदर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाओ इसमें चेक करते हैं, जिसने यहाँ आंसर गलत दिया था वो यहाँ कम से कम सही दे देना. नाउ these 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो पेरेंट एटम से बाउंड थे, ये तो दिखा दिए मैंने वैलेंस बैंड में. अच्छा,
कोई एक इलेक्ट्रॉन जो इनमें से टूट जाता था और टूट के फ्रीली मूव करता था, जिसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते थे या कुछ कर देते थे, वो पहुंच जाता था कंडक्शन बैंड में। जब तक हम टेम्परेचर नहीं देते थे, हम 0 केल्विन पर होते थे, तब तक तो वो भी बैलेंस में ही रहता था, लेकिन जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर पर ले आते थे तो वो हो जाता था कंडक्शन बैंड में। लेट्स से नाउ आई बॉट दिस टू 0 केल्विन, तो ये जो बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये तो डेफिनेटली बैलेंस बैंड के अंदर शो होंगे कहीं ना कहीं। कैन एनीवन टेल मी इन द क्लास where should I show this extra electron? Can anyone tell us? Conduction band. कोई और? Conduction band. कोई और? Just above the valence band. near Just above phosphorus the valence band. वैलेंस बीच बैंड। में होगा। कोई between और? valence and conduction band. कोई सर और? अगर एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल भी तो वो वैलेंस बैंड में होना चाहिए। कोई और? So below the conduction band. Good. Good. Electron gap में Who is this below the conduction band? So sure है. Sure. Good. Very good. Just below the conduction band. Now, how? Understand this. ये हमने बैंड कैसे ड्रॉ किए हैं? ये हमने बैंड ऐसे ड्रॉ किए हैं कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है बाहर घूमने के लिए, तो आप वैलेंस बैंड में हैं। अगर आपके पास एनर्जी है घूमने के लिए, तो आप कंडक्शन बैंड में हैं। लेकिन अगर आपके पास जरा सी एनर्जी की जरूरत है, सिंस यू आर वेरी लूजली बाउंड विद द फास्फोरस एटम, यू ओनली रिक्वायर्ड लिटिल एनर्जी। बस आपको तो ये है कि बस हल्का सा कोई पुश कर दे, आप तो बस जहां मर्जी जाने को तैयार है। वो चल रहा है घूमने शिमला, चलता हूँ, मेरा कौन सा यहाँ पे कोई बॉन्डिंग बनी हुई है? बॉन्डिंग वाले को पूछना पड़ता है, कोई कल हुआ हूँ कि अभी आपको पता नहीं होगा, बन जाएगी तो पता चल जाएगा। हुआ हूँ ना ना ना, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, यहीं रुको, तो फिर वहीं रुक गए। कैमरे ऑन कर लो यार, 2-4 जने, कम से कम उसका हंसता हुआ तो देख लो कि हाँ हंसी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, समझे में बात आई कि जो जिसकी बॉन्डिंग नहीं है वो तो फ्री है, वो तो फ्री है कि भैया मुझे तो जहां मर्जी ले चलो, बस मुझे तो एक पुश की जरूरत है, बस इतना कहने की जरूरत है कि यस बस चल रहे हैं, बस कोई कह दे चलो शिमला चलते हैं, इट्स रेडी टू मूव। सिमिलरली ये जो 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस है, इट्स रेडी टू मूव इन द क्रिस्टल। बस ये तो बस जुड़ा हुआ है जस्ट, क्योंकि ये फास्फोरस के साथ आया है, बस इसको तो एनर्जी की जस्ट जरूरत है। इसका मतलब इसकी एनर्जी कहाँ है? कंडक्शन बैंड में कौन है जो फ्री है मूव करने के लिए? ये बस जस्ट अबाउट टू फ्री टू मूव। सो इफ इट इज जस्ट अबाउट टू फ्री टू मूव, it will be near the conduction band, and that is why maybe you have heard in the 12th class, that is why they are sitting at the donor level. आपको शायद डोनर लेवल का कंसेप्ट किसी ने बताया होगा कि डोनर लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड द एक्सेप्टर लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। दिस इज हाउ द डोनर लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। उनको तो बस जरा सी एनर्जी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे आते ही एवरी इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं जस्ट 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। अगर इसका मतलब यहाँ पे एक लेवल हमको शो करना पड़ेगा, इसका मतलब ये जो हमने एनर्जी स्केल ड्रॉ किया था, इस एनर्जी स्केल पे वी नीड टू ड्रॉ अ लेवल हियर, एंड दिस लेवल इज नोन एज अ डोनर लेवल बिकॉज इट इज रेडी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल। दिस लेवल रिप्रेजेंट्स दैट देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस लेवल एट 0 केल्विन। ध्यान रखना, लेवल सिर्फ इस लेवल पे इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन हो सकते हैं। As soon as you bring it to the room temperature, तो जब रूम टेम्परेचर पे नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच सकता है, तो 100% ये एनर्जी तो बहुत ही कम है, यहां से तो पहुंच ही सकता है भाई, यहां से तो ना पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं, ये तो उसके बहुत ही क्लोज है। They were saying कि हम तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, हमसे तो बस शिमला चलने के लिए कहो, इनके लिए तो ऊपर ही शिमला है, मजे हैं कंडक्शन बैंड में घूमते रहो। So they are just near the conduction band, and as soon as you bring the material to room temperature, all of the electron jump into the conduction band. Now can anyone tell, जो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, all of the electron can jump, how many electrons are there? About 10 10 to the power 16. Yes, because every phosphorus atom is giving 1 electron. Yes, every phosphorus atom is giving 1 electron, that means 10 to the power 16 electron. Now वो लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिन्होंने पूछा था अभी वो, चलो कोई बात नहीं। So
इसका मतलब at room temperature there are 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन। बस 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मैं जस्ट हल्का सा आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि क्यों अब टेम्परेचर के हैंड में कंडक्टिविटी नहीं है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पे नाउ यू हैव 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन देयर, और पहले कितने थे? 10 to the power 10। बहुत जल्दी आंसर दो। 10 to the power 10 plus 10 to the power 16 equal to 10 to the power 10 10 to to the power power 16. 16. गुड गुड, एटलीस्ट यहाँ आपकी मैथ अच्छा काम कर गई। यहाँ एटलीस्ट आपने 10 to the power 26 नहीं कहा। सो 10 to the power 10 plus 10 to the power 16 is equal to 10 to the power 16 only. ओके, नाउ वो जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि सर अब टेम्परेचर को ऐसा क्या हो गया कि अब नहीं हुआ, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्या हो गया। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है 10 to the power 16। Let's say now you have raised the temperature to 50 degrees Celsius. Let's say the number of electrons which are jumping from the valence band is increased to 10 to the power 11. But 10 to the power 11 does not have any existence in front of 10 to the power 16. 11 का तो कोई existence ही नहीं है 16 के सामने। The number of the concentration in the conduction band will not change because already the conduction band has so many number of electrons. 10 to the power 16 electrons. Now the electrons which are jumping from the valence band does not make any difference in the concentration of electron in the conduction band. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के हैंड में से निकल जाती है। It's 10:30. We will see in the next lecture. So thank you very much. Now I can hand Sir, over. Yes. Can you show the slide just आपने वैलेंस Thank you, बॉन्ड की sir. डेफिनेशन लिखी थी? Yes. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग बिकॉज द नेक्स्ट टीचर इज वेटिंग। ओके, सो Thank you, sir. 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 थैंक यू।